Good morning, students. My name is Krishna Deshmukh from Rashtramatha Jidhav English School, Chikli. This video is related to class 8. It is the last video of chapter 1. The chapter 1 is Living World and Classification of Microbes. Page number 4 and page number 5. In the previous video, we are discussing about the living world as well as classification of microbes. In the living world, we are discussing about the Robert Whittaker's 5 kingdom method. After that, we are discussing about the classification of microbes. And today, we are discussing about the algae and the viruses. Algae's characteristics and viruses characteristics we are discussing today. So, it is the part is related to the classification of the microbes. So, first of all, we are looking at algae. We know that algae found everywhere. Where there is a water, there should be an algae. So, algae is the most important microorganism into the classification. So, that is why look into them. Size of the algae is very small. Some algae we can see by our naked eyes, but most of the algae are also in very small. So, that is why its size is 10 ultramicron to 100 ultramicron. Algae, they are aquatic. We know that all the algae found into the water place. So that is why they are called as aquatic. They are eukaryotic, unicellular and heterotrophic. They are fully developed as well as they are unicellular. But some algae are also multicellular as well as they are heterotrophic. Means they can make their own food. They can make their own chlorophyll. So that is why the color of algae is generally green. So algae found into the green color. Photosynthesis carried out by chloroplasts. Chloroplasts are present into the algae and they carried out the photosynthesis process. There, its example is Chlorella, Chlamydomonas. Chlorella and Chlamydomonas are the types of algae. That are the examples of algae. Very few are unicellular, most of them are multicellular. We know that we can see the algae by our naked eyes. So that is why very few algae are unicellular, but most of the algae are multicellular. That is why we can see the algae. It is a very short characteristics of the algae. You can remember that and memorize that. Today we are discussing about the most important topic. It's called as virus. So we are at the home because of the virus. We know that the corona is also a type of virus. So what is meant by virus? Many misconceptions are related to the corona as well as the types of the virus. In this video we are discussing about the main characteristics of the virus as well as their structure of the virus, how they can work, how they can generally dangerous for the human life. So that is why in this video we are discussing about that factors. हमने देखा है कि एक वायरस की वजह से अभी सारी दुनिया घर पर बैठी हुई है. वो वायरस एग्जैक्टली क्या होते हैं, वायरस कितने डेंजरस हो सकते हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं. इसीलिए पहला जो टॉपिक था अलगी का मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया उसको. आज हम ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करेंगे वायरस के बारे में. सबसे पहले हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे. सो वायरस आर वेरी स्मॉल इन साइज. दे आर वेरी स्मॉल मीन्स देयर साइज इज 10 nanometer to 100 nanometer. We cannot see them into the compound microscope. We can see the virus into only electron microscope. So that is why they are very small in size and they are very complicated structure. So first of all, these are not considered as living organism. One thing is, remember that viruses are not living organism. They are not dead also. They are at the edge of living and non-living. So next point, organism at the edge of living and non-living. All the viruses are generally at the edge of living and non-living.
यानी जो वायरस होते हैं उन्हें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म समझते ही नहीं है। वायरसेस जो है वो लिविंग एंड नॉन लिविंग इनके बीच का एक भाग है, यानी हम उन्हें जिंदा भी नहीं कह सकते और हम उन्हें मरा हुआ भी नहीं कह सकते। सो दे आर एट द एज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। सो टोटली योर माइंड शुड बी रिमेंबर दैट and totally remember about that factor that viruses are at the age of living and non-living organisms. Next, viruses are very small in size, so it can be seen under the electron microscope. Viruses are not seen into the compound microscope. Viruses can only seen into the electron microscope. They are very sensitive microscope. That is why we can generally look into the electron microscope. Viruses studied under the electron microscope. This is very important note. They are studied into only electron microscope because they are very sensitive. Next, they found in the form of independent particle. So all the viruses found at the independent particle. वो किसी का भी भाग नहीं होते, वो independent particle है, यानी वो खुद का प्रोटीन बनाते हैं, खुद का उनका डीएनए स्ट्रक्चर बनाते हैं। So इसीलिए वायरसेस बहुत डेंजरस है। एंड वायरसेस इज अ लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। अब वायरस क्या है? इट इज अ डेफिनेशन ऑफ वायरस। वायरस इज अ लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए और आरएनए कोटेड बाय प्रोटीन। वायरसेस जो है वो डीएनए का एक भाग है। वायरसेस खुद एक डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है। सो व्हाट इज डीएनए? हमारी जो बॉडी है, ऑल द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप बाय डीएनए। So, ये जो डीएनए है, ये डीएनए इसेंशियल प्रोटीन बनाता है आरएनए की मदद से। डीएनए इसका लॉन्ग फॉर्म आप रिमेंबर रखिए, डीएनए मींस डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए मींस राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो होता है वो डीएनए सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए, यानी कि डीएनए आरएनए को ऑर्डर करता है प्रोटीन तैयार करने के लिए। So that is why DNA ordered to RNA to make the essential protein of the human body. So that is why viruses are just a part of DNA and RNA. So that is why viruses are very dangerous. If the viruses are enter into the human body, they are become a part of our DNA or RNA. So they are a part of our body, whole body, as well as they are attacked into any cell or all cell into the human body. So that is why viruses are dangerous. They are attacked to whole cell. जितनी भी सेल उस ऑर्गेनिज्म के अंदर होगी उन सभी सेल के ऊपर ये वायरसेस अटैक कर सकते हैं और वो हमारे शरीर के डीएनए में मिक्स होते हैं और आरएनए में मिक्स होते हैं। और आरएनए क्या करता है? हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन है वो इंपॉर्टेंट प्रोटीन बनाने का काम आरएनए करता है। किसकी मदद से करता है? डीएनए की मदद से करता है। और डीएनए एक तरह का वायरस अगर उसके ऊपर अटैक करता है तो डीएनए अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पाता, आरएनए अच्छी तरह से प्रोटीन नहीं बना पाता और उन सब का डेंजरस इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर होता है। इसीलिए वायरसेस बहुत डेंजरस होते हैं। सो यू कैन रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ द वायरस। वायरसेस इज अ लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए एंड आरएनए कोटेड बाय प्रोटीन। वेरी इजी डेफिनेशन, you can remember that. Fifth characteristic of virus. Virus are only used in living animal or plants body. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वायरस जो होते हैं वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही जिंदा रह सकते हैं। किसी भी डेड बॉडी में वायरसेस जिंदा नहीं रहते। वायरसेस आर ओनली लिव इनटू द लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिर वो प्लांट हो या एनिमल हो। अभी जो कोरोना वायरस है वो कोरोना वायरस भी जब तक आदमी जिंदा है तब तक उसके बॉडी में रहता है। आदमी अगर डेड हो गया तो उसकी बॉडी में कोरोना वायरस आफ्टर सम टाइम इट शुड बी डाइड, वो भी खुद ब खुद मर जाता है। इसीलिए जो भी व्यक्ति की कोरोना की वजह से डेथ होती है उसकी डेड बॉडी जो होती है वो डेड बॉडी डायरेक्टली हम उसको डिकम्पोज कर देते हैं या फिर उसको जनरली नष्ट कर देते हैं। तो इसीलिए ध्यान में रखिएगा कि वायरसेस जो होते हैं वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ही रह सकते हैं। किसी भी
मरे हुए आदमी के बॉडी में, मरे हुए ऑर्गेनिज्म के बॉडी में वायरसेस जिंदा नहीं रह सकते. आफ्टर सम टाइम दे कैन डाई. सो दैट इज व्हाई इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट टू यू. Check their own protein with the help of host cell and create replica. Then they destroy the host cell. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या करता है वायरस? Viruses can get the protein from the host cell. हमारे शरीर के अंदर जो सेल होती है, उन सेल के अंदर ये वायरस अटैक करता है. वायरस उन सेल के अंदर अटैक करने के बाद वो जो होस्ट सेल है, वो होस्ट सेल खुद का प्रोटीन बनाता है. उस प्रोटीन को, उस सेल को नाम देते हुए वो वायरस खुद उस प्रोटीन को ले लेता है. सो वायरस कैन गेट द प्रोटीन फ्रॉम द होस्ट सेल. और होस्ट सेल जो होती है वो उसके बाद में डेड हो जाती है. होस्ट सेल को वो पूरी तरह से मार देता है, क्योंकि वायरस जब उस सेल के अंदर एंटर करता है, उस सेल का जो इसेंशियल प्रोटीन है वो खुद लेता है और रिप्लिका तैयार करता है. रिप्लिका मीन्स दे कैन जनरली रिप्रोड्यूस. सो वायरसेस कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ रिप्लिका. So that is why the host cell become destroyed because insufficient protein. अब उस सेल के अंदर जो है अनसफिशियंट प्रोटीन होता है, और अनसफिशियंट प्रोटीन की वजह से वो जो होस्ट सेल है वो आफ्टर सम टाइम इट शुड बी डिस्ट्रॉयड. सो वायरस उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है एंड बिकम फ्री. जब वो होस्ट सेल पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, ये वायरसेस की रिप्लिका जो है वो रिप्लिका सब तरफ फैल जाती है. सब तरफ फैलने के बाद वो अलग अलग होस्ट सेल खुद की बना लेती है और उन सभी होस्ट सेल के ऊपर अटैक करती है. सो एक वायरस से हजारों रेप्लिका तैयार होती है और वो हजारों रेप्लिका और हजारों सेल के ऊपर अटैक करती है. सो इस तरह से वायरस कैन रिप्रोड्यूस देयर ओन विद द हेल्प ऑफ रेप्लिका, एंड बिकॉज ऑफ दैट रेप्लिका द होस्ट मेनी होस्ट सेल गेट डिस्ट्रॉयड, एंड बिकॉज ऑफ द होस्ट सेल डिस्ट्रॉयड these viruses infect into the new cells. वो जो वायरस है जो बाहर आ चुका है, फ्री हो चुका है, वो अलग अलग होस्ट सेल को अटैक करता है और सभी सेल के ऊपर इन्फेक्ट करता है. और जब उस पूरे शरीर में वायरसेस फैल जाते हैं तो अपने आप वो जो बॉडी होती है, वो बॉडी अंदर से खोखली हो जाती है और वो आदमी मर जाता है. सो इसीलिए वायरसेस डेंजरस होते हैं. तो वायरसेस जो है वो मरे हुए नहीं है, वायरसेस जो है जिंदा भी नहीं है. इसीलिए उनको मारने के लिए हमें कोई ना कोई एंटीवायरस तैयार करना पड़ता है. एंटीवायरस उनके रिप्रोडक्शन को रोक देता है, और जब उनका रिप्रोडक्शन रुक जाता है तब वायरसेस अपने आप नष्ट हो जाते हैं, वायरसेस अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. सो दैट इज व्हाई द एंटीवायरस इज इंपॉर्टेंट फॉर डिस्ट्रॉइंग द वायरसेस. इसीलिए कोरोना अब तक नष्ट नहीं हुआ है. कोरोना जो वायरस है, इस वायरस का एंटीवायरस अभी तक किसी भी साइंटिस्ट को नहीं मिला है. इसीलिए ये इतने पूरे वर्ल्ड में इतना फैल चुका है. सो अभी आगे देखते हैं. सिक्स्थ पॉइंट, वायरस कॉज मेनी डिसीज टू प्लांट एंड एनिमल. वायरसेस आर नॉट इन्फेक्ट टू द एनिमल्स ओनली, दे कैन इन्फेक्ट प्लांट ऑल्सो. वायरसेस जो है वो प्लांट के ऊपर भी अटैक करते हैं, एनिमल्स के ऊपर भी अटैक करते हैं. सो वायरसेस आर जनरली डेंजरस फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. कुछ एग्जांपल्स है वायरस के. ह्यूमंस के ऊपर सबसे डेंजरस वायरस जो था, जो हमारे इंडिया में जिसने बहुत सारे बच्चों की जान ली थी, बहुत सारे बच्चों की डेथ उसकी वजह से हुई थी, उसका नाम है पोलियो वायरस, जो 5 साल के अंदर के बच्चों को ज्यादातर होने का डर रहता है. लेकिन अभी पोलियो वायरस के ऊपर एंटीवायरस डोट मिल चुका है, और एंटीवायरस का वो जो एंटीडोट है वो देने का काम हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट अस्पताल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वो करते हैं. इसीलिए अभी पोलियो का इतना डर इंडिया को नहीं रहा है. पोलियो एक वायरस था जो बच्चों के ऊपर इफेक्ट करता था. उसके बाद HIV वायरस, इसको हम नॉर्मल भाषा में एड्स कहते हैं. सो इट इज ऑल्सो वायरस. वी कैन डिस्कसिंग इनटू द नेक्स्ट चैप्टर. अगले चैप्टर में HIV और एड्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. नेक्स्ट है अभी जो खौफ, जिस वायरस का सबसे ज्यादा निर्माण हो चुका है, जिसे हम खौफ कहेंगे, कोरोना वायरस. सो कोरोना इज ऑल्सो द वायरस which can be infect onto the human body. नेक्स्ट है अभी ये जो देखा हमने ह्यूमन के लिए. अभी जो कैटल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, उन जानवरों के ऊपर पिकोरना वायरस अटैक करता है. पिकोरना वायरस. सो इट इज जनरली डेंजरस फॉर कैटल्स ऑल्सो. उनके जो पैर होते हैं, उनके पैरों में सूजन आती है. कुछ दिनों के लिए उन्हें बहुत ज्यादा
फीवर होता है और आफ्टर दैट द एनिमल शुड बी डेथ इफ द नेसेसरी मेडिकल ट्रीटमेंट इज नॉट गिवन टू दैट एनिमल, इट शुड बी डाइड। नेक्स्ट है, अभी वायरस जो है वो एनिमल्स के ऊपर अटैक करता है, साथ ही साथ वो प्लांट के ऊपर भी अटैक करता है। टोमेटो विल्ट, इट्स वायरस नेम इज टोमेटो विल्ट वायरस। इसकी वजह से टोमेटो जो है, उन टोमेटो अंदर से थोड़े से पीले हो जाते हैं, यानी कि उनका कलर थोड़ा सा पीला हो जाता है। सो इट इज टोमेटो विल्ट वायरस, जो अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर चला जाए तो इट शुड बी अफेक्टेड टू ह्यूमन बॉडी ऑल्सो। सो दैट इज वाई जब भी आप टोमेटो खाए तो वो अंदर से पीला नहीं होना चाहिए। अगर पीला टोमेटो हुआ तो वो खाना नहीं चाहिए। सो इट इज प्रिकॉशन, यू कैन गेट द प्रिकॉशन अबाउट दैट। नेक्स्ट है टोबैको। जो टोबैको होती है, उस टोबैको के ऊपर भी कुछ वायरस इन्फेक्ट करते हैं। इट्स कॉल्ड एज मोज़ेक वायरस। नेक्स्ट है, अब वायरस इतना डेंजरस है कि वो बैक्टीरिया के ऊपर भी अटैक करता है। यानी कि जो बैक्टीरिया अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर जाते हैं तो ह्यूमन बॉडी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जिसे हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहते हैं। बैक्टीरिया एक ह्यूमन को भी बीमार कर सकता है, लेकिन ये वायरस ऐसा है कि वो बैक्टीरिया के भी अंदर जा सकता है, यानी बैक्टीरिया को भी वो इन्फेक्ट कर सकता है, बैक्टीरिया को भी वो जनरली डिस्ट्रॉय कर सकता है। इतना डेंजरस ये वायरस होता है। सो बैक्टीरिया के ऊपर जो अटैक करता है उसे हम बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं। बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्ट करने वाला वायरस। सो इस वीडियो से हमने आज अलगी और वायरस के बारे में इंफॉर्मेशन ली। वायरस की जो कंसेप्ट है वो आप समझ लीजिए। वायरस जो है वो जिंदा भी नहीं है और मरे हुए भी नहीं है, वो एट द एज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग है। इसीलिए अभी जो डेंजरस हमारे आजू बाजू का जो वातावरण हो चुका है कि कोरोना की वजह से बहुत सारी डेथ हो रही है, बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं, हजारों में उनका आंकड़ा है। अगर हम बाहर के वर्ल्ड में देखेंगे तो मिलियंस ऑफ पर्सन्स आर इन्फेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट वायरस। ये असल में डेंजरस है। इसीलिए जो प्रिकॉशंस हमें कहे गए, जो प्रिकॉशंस लेने के लिए कहा गया है, वो हमें प्रिकॉशंस लेते रहना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया वायरस कितने डेंजरस है। अगर ये आपके बॉडी के अंदर जाते हैं तो अगर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ी सी भी वीक हुई तो ये आपको पूरी तरह से अंदर से खोखला कर सकते हैं और बाद में उस आदमी की डेथ हो सकती है। इसीलिए वायरस से अगर आपको बचना होगा, किसी भी वायरस से, अभी कोरोना का लेटेस्ट हमारे सामने उदाहरण, इसीलिए मैं कोरोना के बारे में बात करूंगा। अगर आपको इससे बचना होगा तो प्रिकॉशंस लेने बहुत जरूरी है। यानी कि जो प्रिकॉशंस हमें कहे गए कि मास्क आपको पहनना चाहिए, लेकिन मास्क पहनने की भी कुछ पद्धत है। लोग हर वक्त 24 घंटे मास्क पहन के रहते हैं, इससे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है, जो आपके लिए बहुत डेंजरस है। अगर आप सिंगल हो, अकेले हो, तो मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। अगर आप खुद की फैमिली के अंदर हो, अब आपके खुद के फैमिली के लोग, आपको पता है ऐसे कुछ बीमारी है या नहीं है, तो फिर आपको मास्क पहनने की घर में जरूरत नहीं है। अगर आप ज्यादा लोगों के बीच जा रहे हो, अगर ज्यादा पब्लिक प्लेस हो, वहां पर आपको मास्क पहनना बहुत जरूरी है। सो इससे आप खुद का बचाव कर सकते हैं। सैनिटाइज कर सकते हैं खुद के हाथों को। सैनिटाइज करने के लिए आजकल मार्केट में बहुत सारे सैनिटाइजर आ चुके हैं। आप घर में आने के बाद अपने हाथ अच्छी तरह से जो वॉशिंग सोप होता है उससे धो सकते हैं, टॉयलेट सोप होता है उससे धो सकते हैं, या फिर हैंड वॉश से धो सकते हैं। सो इट इज द प्रिकॉशन। एज वेल एज अगर आपको थोड़ी सी भी सर्दी खांसी जुकाम हो तो अपने जो फैमिली डॉक्टर है उनसे डिस्कस करना चाहिए। सभी प्रकार की सर्दी खांसी जुकाम ये कोरोना के लक्षण नहीं है। आपके फैमिली डॉक्टर को आपको इस बारे में पूछना चाहिए और उनसे डिस्कस करके फिर डिसीजन लेना चाहिए। अगर ऐसी कोई तकलीफ हो तो वो छुपानी भी नहीं चाहिए। आपको सीधा डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज करवा लेना चाहिए, जिससे आपकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी रहे। और बाहर का खाना तो अभी बंद हो चुका है, लेकिन जब भी होटल्स खुलेंगे या फिर बाहर का खाना आप खाएंगे तो आप ज्यादा बीमार होने की संभावना होती है। तो अभी के लिए बाहर का खाना आपको नहीं लेना चाहिए, नहीं खाना चाहिए बाहर का खाना। एज वेल एज इसमें प्रिकॉशन सबसे ज्यादा जरूरी है। जो लोग डायबिटिक पेशेंट है या फिर नॉट ओनली डायबिटिक पेशेंट, जिन लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, जो लोग फ्रिक्वेंटली बीमार होते हैं, उन लोगों ने अपनी खुद की जो केयर है वो लेनी चाहिए, अच्छी तरह से लेनी चाहिए। शाम के वक्त अच्छी तरह से, आप देखिए हमारे इंडिया में कोरोना का डेथ रेट बाकी के देशों की तुलना में कम है।
इसका कारण है हमारी इम्यूनिटी सिस्टम। बिकॉज हमारा जो खाना है उस खाने के अंदर हम बहुत सारे मसाले खाते हैं। इन मसालों की वजह से हमारे बॉडी के अंदर एक हीट तैयार होती है और बिकॉज ऑफ दैट हीट, उष्णता की वजह से हमें ये वायरस ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन फिर भी हम कभी भी पॉइजन की टेस्ट नहीं लेते। इसी तरह से आपको आपकी इम्यूनिटी सिस्टम इंक्रीज करनी चाहिए। बाहर का खाना नहीं करना चाहिए। एसी या फिर जो ज्यादा ठंडे एरिया में रहना पसंद करते हैं लोग, उन्होंने भी ज्यादा ठंडे एरिया में नहीं रहना चाहिए। एसी तो अभी आप बंद ही कर दीजिए। अभी रेनी सीजन भी चल रही है, एसी में आपको नहीं रहना है। बिकॉज एसी के अंदर जो टेम्परेचर है वो अलग होता है, जैसे आप बाहर आते हैं वो टेम्परेचर अलग होता है। आपके बॉडी के अंदर फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है वायरस को। इसके वजह से वायरस आपकी बॉडी के ऊपर बहुत जल्दी अटैक करता है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो जो टर्मरिक है, जिसे हम हल्दी कहते हैं, उस हल्दी का आपको दिन में 1-2 बार सेवन करना चाहिए। यानी कि आप हल्दी का काढ़ा बनाकर पीजिए। आप हल्दी थोड़ी सी अपने जो खाना है उसके अंदर थोड़ी सी ज्यादा लीजिए। सो ऑल दीज आर द प्रिकॉशंस रिलेटेड टू द कोरोना वायरस। एज वेल एज एक बहुत अच्छा प्रिकॉशन है, जब भी आप बाहर जाए, पब्लिक प्लेस में जाए, तो जिसे हम मराठी में लवंग कहते हैं, मराठीत आपण त्याला लवंग म्हणतो, ती लवंग आपण तोंडामध्ये ठेवली पाहिजे। उस लवंग की वजह से जो वायरल इन्फेक्शन हमारे बॉडी के अंदर जाता है उसे थोड़ी देर के लिए हम रोक सकते हैं। और एक लास्ट प्रिकॉशन बताऊंगा आपको, सवेरे सवेरे, दोपहर को और शाम को 3 टाइम थोड़ा सा गर्म पानी का आपको सेवन करना चाहिए। अब 3 टाइम तो हम नहीं ले सकते। सवेरे सवेरे भी अगर आपने थोड़ा सा गुनगुना पानी लिया, गर्म पानी कर लिया, थोड़ा सा पानी गर्म करके उसे थोड़ा सा ठंडा होने दिया और वो पीने लायक होने के बाद में अगर आपने पिया तो जो थ्रोट इन्फेक्शन है वो क्लियर हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा वायरस, जो कोरोना वायरस है, वो थ्रोट में आपके बहुत जल्दी एंटर करता है और उसके बाद में वो आपके जो ट्रेकिया है उसमें अंदर, उसके अंदर जाता है। इसीलिए थ्रोट के अंदर जब तक वो है, आप अगर गर्म पानी पिएंगे तो सीधा आपके पेट में चला जाएगा। आपके पेट में बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, बिकॉज ऑफ दैट कोरोना वायरस शुड बी डाइड। सो गर्म पानी आपको पीना चाहिए। अगर आप चाय पीते हो तो सुबह, दोपहर और शाम को तीनों वक्त अच्छी तरह से गर्म चाय आपको पीनी चाहिए, वो भी बहुत अच्छा है। अगर आप ब्लैक टी ले सकते हैं तो वो भी आपके सेहत के लिए बहुत अच्छी है। बहुत सारे प्रिकॉशन अभी आप लेते भी होंगे, ये मेरे कुछ सजेशंस आपको है। इस तरह से हमारा जो पहला चैप्टर है साइंस का, क्लास 8 साइंस का पहला चैप्टर, ये खत्म होता है। अगले चैप्टर में हम फिर मिलेंगे। टिल देन, मैं कृष्णा देशमुख फ्रॉम राष्ट्रमाता जिजाऊ इंग्लिश स्कूल क्रिएटिव एजुकेशन इस यूट्यूब चैनल के ऊपर रोज वीडियो डालता हूं और ये वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। टिल देन, थैंक यू। Subscribe my channel, share my channel and like my channel. Thank you very much.